میری بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ واعتصموا بحبللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت کے اندر کہ تسی ایک ہو جاؤ، تفرقے نہ پھیلاؤ، ایک رسی نو اس طرح مضبوطی نال تھام کے بہ جاؤ جویں ایک رسی نو پھڑ کے تے اسی انج بہ جانے، تو کوئی فرقیاں وچ تقسیم نہ ہو۔ تے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ رسی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسی وہ ہے جو ہم دنیا میں سے جب جائے تو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا اپنی میں اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تے جب تک تم زندہ رہو نہ قرآن کا ساتھ چھڑنا نہ میری اہل بیت کا ساتھ چھڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا والو، میری تبلیغ کا اجر میرے اللہ کے پاس ہے، جو میں نے دنیا میں تبلیغ کی اور اس تبلیغ کا صلہ میرا اللہ اجر دے گا، لیکن میں تم سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ یہ سوال کرتا ہوں تو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، یہی کلمے پڑھانے کا صلہ چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا ہم بچے بچیاں آپ کے نام لگا دے؟ فرمایا میری رب دی مخلوق میری امت ہے، مجھے نام لگوانے کی ضرورت نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہم زمین جائیداد دولت مال توڑے نام لگا دیے؟ فرمایا خدا دی کل کائنات میری کائنات، میں انہاں چیزاں دا طلبگار نہیں، نہ مال دا نہ دولت دا، کسی چیز دا نہیں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، جب تک تم زندہ رہو۔ میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، جو اس کے اندر یعنی بیٹھ گیا تھا، وہ طوفان سے بچ گیا تھا۔ اگر روز محشر کو میری شفاعت کی امید رکھتے ہو، روزے کو اور میری بخش شفاعت کی امید رکھتے ہو، تو پھر ایسے کرنا، ان کی کشتی میں بیٹھ جانا۔ جو خدا کے عذاب سے دوزخ سے بچنا ہے تو ہر چیز سے، تو پھر ان کی کشتی میں بیٹھ جانا۔ جب ان کی کشتی میں بیٹھ جاؤ گے تو تم لوگوں کی نجات ہو جائے گی، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں ہوا وہ نہیں بچ سکا، تو پھر اسی طرح ہے۔ اور میری بہنوں گلا پھر شروع ہو گئی، بات کی طرف توجہ کرو۔ تو میری بہنوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم کیا دے رہے ہیں اس کی طرف توجہ کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام حسین تھی جس وقت پیدا ہوئے تو میری بہنوں خوشیاں منائیاں گئیاں۔ جب خوشیاں منائیاں گئیاں تو پھر کیا ہوا؟ میری بہنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، آ کر اپنے نواسے کو میری بہنوں آ کر خود سرکار نے آپ لابدان کی گھٹی دی۔ اس کے بعد تمام فرشتے مخلوق آقا علیہ السلام کے مبارکباد دینے آئی، اللہ کے فرشتے بھی آئے، اور ایک فرشتہ ایسا تھا جن کو اس نے کوئی ایسی غلطی کر دی تھی جن کی وجہ سے اس کے پر جلا دیے گئے تھے۔ ہم کسی سے حسد تو نہیں کر سکتے، حسد کا تو حکم نہیں دیتے۔ وہ فرشتہ ہو کے انسانوں سے کوئی حسد کیا، کوئی غلطی کی، اللہ نے کر دے اس کے پر جلا دیے۔ جب جبرائیل امین امام حسین کی مبارک دینے آئے، اللہ نے فرمان تو بعد فرمایا جاؤ میرے نبی کو مبارکباد دے کے آؤ۔ جب مبارکباد دینے آئے
उस फरिश्ते को मेरी बहनों जिब्राइल परों पर उठा के लेके आए। जब परों पर उठा के लेके आए ना तो मेरी बहनों फिर क्या हुआ, तो वो उसे दरवाजे पर रख दिया। जब आका को मुबारकबाद दी, सरकार ने सवाल किया जिब्राइल उस फरिश्ते को पीछे क्यों छोड़ आए हो? या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने उसको गलती की ऐसी सजा दी है, उसके पर भी जल गए हैं। जब पर भी जल गए हैं तो फरमाया इस इमाम हुसैन के सदके से दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको पर दोबारा सलामत फरमा दे। आज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस फरिश्ते को लाकर मेरे हुसैन के झूले के पास ले आओ, हुसैन के हाथ को पकड़कर उसके पैरों पर और के जिस्म पर मसल दो। तो अल्लाह तबारक तआला ने उसको पर फिर से अता फरमा दिया। वो फिर फरिश्ता तरोताजा हो गया। तो उसी वक्त खुशखबरी मुबारकबाद की भी आई। अल्लाह भी तुम्हें मुबारकबाद देता है और आप भी निके तो इधर उधर को देखनी, मेरे सामने बैठ के इधर उधर को देख दी, जाने वाले को जाने दे जाती है तो नहीं, उसको क्यों क्या मसला, बार बार बात नहीं कर दो। तो अगर बात को जब तवज्जो के साथ सुनने बात यही होती है। तो मेरी बहनों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की कुछ को फिर अल्लाह तबारक तआला ने पर अता फरमा दिए। जब पर अता फरमाने के बाद फिर मेरी बहनों सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी आकती जिब्राइल आकर खुशखबरी क्या दी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे इस शहादत बेटे को तेरी ही उम्मत शहीद करेगी। शहादत की खुशखबरी भी आ गई। जब सरकार ने सुना तो सुन के खामोश हो गए। इसकी गर्दन चूमा करते थे, हसन का मुंह चूमा करते थे। इसी बात की जब खबर मिली तो आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, ठाके दुआ की, या अल्लाह, जब इसके ऊपर ये वक्त ये टाइम आए तो मैं उस वक्त ये नहीं कहा ये मेरे फातिमा का लगता जिगर है, या अल्लाह ऐसी मुश्किल आए तो इसको ऊपर टाल देना। फरमाया नहीं, या अल्लाह इसको साबित कदम रखना। वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह। अल्लाह ताला फरमाता है जब मुश्किल वेला आए सब्र करो तो नमाज करो, मदद का मांगो। या अल्लाह, न इसके सब्र क्या नमाज क्या इला है? फरमाया नहीं, वो एक जुज़ है, इस एक तरीका है अल्लाह से कि ना मदद तलब करने का, सजदे के अंदर गिर जाने का। जब मुश्किल वेला आए, परेशानी आए, अपने पाँव वेला ना करो, मुंह पे चंडा ना मारो, मातम नहीं करो। तो फरमाया फिर या अल्लाह मेरे हुसैन को जब ये वक्त आए उस वक्त साबित कदम रखी। इस बात का जिक्र का अली पाक को भी पता था, बीबी फातिमा को भी पता था, प्यारे नबी को भी पता था, सबको इल्म था। किसी ने हाथ उठाकर ये दुआ नहीं की थी या अल्लाह ये ऐसा वक्त मेरे सर पर ना लाना, बल्कि ये दुआ की थी या अल्लाह जब ये वक्त आए तो मेरे अल्लाह तो इसको साबित कदम रखना, इसको साबित कदम रखना और अपने पैद कदमों से लड़खड़ा ना जाए। उस वक्त सरकार ने फरमाया जहां मेरा बच्चा शहीद किया जाएगा मुझे वहां की जगह की मिट्टी लाकर दिखा। जिब्राइल ने मिट्टी लेकर आए। वो मिट्टी मेरी बहनों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी उम्मे सलमा को दी, कहा ये मिट्टी को शीशी के अंदर डाल दो। जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी मेरे हुसैन का दुनिया से जाने का आखिरी वक्त आ जाएगा तो नाने दी शान रह जाए, नाने दा दीन रह जाए और लुटी जाए पावे जो हुसैन दी जिंदाने दा जिंदा अस्सलाम रह जाए। मेरी बहनों एक वाकया सिर्फ आप लोगों को सुनाती हूँ। वो वाकया क्या है? इमाम हुसैन छोटे थे, छोटे वक्त था। जब छोटे थे वक्त में इनके एक दोस्त था जिनका नाम इब्ने मुजाहिर हबीब इब्ने मुजाहिर था, तो उसके साथ दोस्ती थी। जब ये दोस्ती इन्होंने की करने के साथ मेरी बहनों जो हबीब की माँ थी वो ईमान वाली नहीं थी, कलमा नहीं उसने पढ़ा था। तो वो कहने लगी थी बेटा ये सैयद है, हम और है, हम यहूदी हैं, आप इनके साथ ना खेला करो, तुम इनके साथ ना जाया करो, हम और मजहब के हैं, ये और मजहब के हैं।
तो हबीब कहने लगा मैं कि ना अम्मी फिर ऐसा करो, मुझे इतनी की इजाजत दे दो, इमाम हुसैन और हसन मेरे साथ मोहब्बत से खेलते हैं, प्यार से खेलते हैं, अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं उन्हें बताकर आ जाऊं कि मेरी माँ मना करती है। अदब की बात देखो, वो बच्चा वो भी अदब वाला है। उस बच्चे ने क्या कहा, माँ मैं जाकर कह के आ जाऊं। कहने लगी जा बेटा बता के आ जा कि कहीं तेरा इंतजार न करते रहे। मेरी बहन जब इब्ने मज़ाहिर गया उनके पास जाकर कहा मेरी माँ हम दूसरे मजहब के लोग हैं, एक ना सैयदों के साथ खेलने की इजाजत नहीं देती। तो कहते माँ तो आखिर माँ होती है, फिर आप ऐसा करें कि आप ना आए और आप अपने घर में रहे, हम खुद आएंगे आपके से मिलने के लिए। उन बच्चों ने दोनों ने जब वादा किया, मेरी बहना वादा करने के साथ जब वादा किया तो क्या हुआ, बच्चा था जाके कह के आ गया। माँ कहने लगी बेटा कह के आ गए हो? जी हाँ इमाम हुसैन ने मेरे साथ वादा कर लिया है। क्या वादा किया है? अब तू ना आया कर, माँ की बात मान, अदब की बात है ना, माँ की कदर कर। लेते तो मैं असी खुद तेरे साथ मिलने वास्ते आ जाया करांगे। जे तुसी दूसरे मजहब दे लोग हो तो की होया। देखो जिदो दीन फलाना होवे नाने का, तो फिर मेरी बहनों इब्ने मज़ाहिर आगे घर आके शाम हो गई। शाम होती गई, होने के साथ साथ मेरी बहन छत पर टहलना शुरू कर दी। कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है। जब इधर उधर जा रहा और आ रहा है मेरी बहनों, तो फिर क्या है, तो उसका पांव फिसला और छत से गिर गया। माँ फिर तड़पी, माँ भी तड़प कितनी है, तड़पी कहने लगी काश मैंने तुझे रोका ना होता। तो उनसे इतनी मोहब्बत करता है, तो उनके साथ इतनी मोहब्बत करता है, मैं रोका ही ना होता। जमीन से जब गिरा आखिरी सांस ले रहा, आखिरी सांस लेने के बाद कहने लगा माँ अगर हसन आ गया या इमाम हुसैन आ गए तो उनके साथ अदब से पेश आना, उनके साथ अदब से पेश आना, उनको खाने को कुछ देना, माँ उसके साथ मोहब्बत से पेश आना, कभी गुस्से से पेश ना आ जाना। माँ तड़पी काश मैं इस बच्चे को ना रोकती, तो मैं तड़पी अपनी गलती पर नदामत हुई। जब नदामत हुई माँ भी हाथ जोड़ी सतवें आसमान पे जांदी और माँ ने बच्चे ने उठा के चारपाई पर लटाया, ऊपर कटपड़ा दे दिता और रोने लग गई। इतनी देर में दरवाजा खटक गया, दरवाजा खटक गया। फिर अपने दरवाजा जल्दी जल्दी उसने मेरी बहनों आंसू पूछे, आंसू पूछने के साथ साथ फटाफट में क्या कितना वो तो समझी सी शायद उन्होंने क्या देता पता नहीं, आना है कि नहीं आना, लेकिन वाकई आ गए। उन्हें चारपाई उठाई दूसरे कमरे के अंदर रख दी। जो मेरी बहनों दूसरे कमरे के अंदर रख दी, ते फिर जो दरवाजा खोलिया अपने कपड़े दुरुस्त किए, अपनी चादर दुरुस्त की, ते इमाम हुसैन आ गया। कहनी मैं कुर्बान जावा लजपाल तेरे तो तुसी की ना, मैं तो समझा सी शायद तुसी आना ही नहीं। कहते सी असी वादा कीता सी अपने यार नाल, असी किवें ना आंदे। ते जो आए आके तो दे सैन विच बैठ गए, जमीन दे उत्ते इमाम हुसैन बैठ गए। जो मेरी बहनों बैठे तो बैठ गए तो वह तड़फे, कहने लगे तुसी नीचे ना बैठो, तुसी सैयदा दिला दो, आले रसूल दिला दो, तुसी नीचे ना बैठो, तुसी ऊपर चारपाई पर बैठो। फिर अदब बजा लाई, जो अदब बजा लाई तो मेरी बहनों ते इमाम हुसैन की कहते ओ वादा कीता सी यार ने नाल मेरे, असी खूब नभानिया यारियां ने, जंज हंजुआं दी और डिगी आन मेरे, असा गुरु ने कीतियां तैयारियां ने,
वादा कीता सी यार ने ओ नाल मेरे असी खूह नभानिया यारियां ने जंज हंजुआं दी ओ डिगी आन वेरे अगों रूदियां होइयां तैयारियां ने चंगे बेलियां नाल जे मेल होवे ओ चंगे बेलियां नाल जे मेल होवे ते लेंदे ने ओ दिंदे ने दुख मुसीबतां ओ टाल बेली जे बेलियां दी ओ बेल नू लब ना होवे कोई होवदा दा बेली ओ बाल बेली नसरीन इस उम्मत नो हशर दा ओ गम कीए ओ जिन्ना दे ने सरकार बेली मेरी सुभान अल्लाह मिलके को बुलंद आवाज नाल इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी जो बहनों मेरी बहनों इमाम हुसैन ने फरमाया मेरा होना भी बेली किते वे वो कहंदी ते उते चला गया वो जिथे कोई आ नहीं सकता सी कहंदा जिथे चला गया सानू दस दे सी वो तो मोड़ ले आइए इमाम हुसैन अभी छोटी उम्र